السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس C++ لینگویج کے اندر جو ارتھمیٹک آپریٹرس ہیں وہ کون کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے فنکشنز جو ہیں وہ اپنے پرفارم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کریں نارمل ارتھمیٹک آپریٹرس کی تو ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ ٹائپس کے نارمل ارتھمیٹک آپریٹرس ہیں جو کہ ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژنس ہیں۔ ان کو نارمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ C++ لینگویج کے اندر بھی بالکل ایسے ہی فنکشن پرفارم کرتے ہیں جس طرح سے یہ باقی لینگویج یا باقی سبجیکٹس کے اندر اپنے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ C++ لینگویج کے اندر یہ انٹیجرز اور فلوٹنگ پوائنٹ ویلیوز کے ساتھ اپنے فنکشنز یا آپریشنز جو ہیں ان کو پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپریٹر ہے وہ ہے ریمائنڈر آپریٹر۔ ریمائنڈر آپریٹر تھوڑا سا یونیک ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہ صرف انٹیجر ویلیوز کے ساتھ کام کرتا ہے اور نارملی میتھ کے اندر اس طرح کا کوئی فنکشنز جو ہے وہ نہیں ملتا ہمیں۔ اس کو ہم پرسنٹ سمبل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کو ماڈولس آپریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی کسی بھی ڈویژن کا جو ریمائنڈر ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرتا ہے۔ کس طرح سے فائنڈ کرتا ہے اس کو ہم ایک ایگزامپل سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس 10 ریمائنڈر 3 ہے۔ اگر ہم 10 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں تو اس میں جو ویلیو ہمارے پاس باقی بچ جائے گی وہ بیسیکلی اس کا آنسر ہوگا۔ فار ایگزامپل 10 اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 سے، تو جب آپ 10 کو 3 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریمائنڈر بچے گا وہ 1 ہے۔ اب 1 یہاں پہ جو ہے وہ آنسر ہے 10 ریمائنڈر 3 کا۔ 3 ڈویژن کا آنسر ہے اور 1 ریمائنڈر کا آنسر ہے۔ اب ہم اس کو پریکٹیکلی ایک پروگرام کے اندر ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایڈیشن، سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن ہے ان کے ریزلٹس ہم کس طرح سے شو کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ویریبل A لیا جس میں ویلیو 10 سیو کی، B ویریبل اس کے اندر ویلیو 3 کو سیو کیا۔ اب سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے جب ہم A اور B کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہم کچھ اس طرح سے شو کریں گے کہ ہمارے پاس ویلیو آفٹر ایڈیشن از ایکول ٹو A پلس B۔ اب A پلس B کی جگہ پہ ان کی ویلیوز ایڈ ہوں گی اور اس کا رزلٹ ہمیں اسکرین پہ شو ہوگا۔ A کی ویلیو 10 تھی، B کی 3 تھی، تو رزلٹ میں ہمیں 13 شو ہوا۔ اسی طرح سے جب ہم سبٹریکشن کریں گے تو 10 میں سے جب 3 سبٹریکٹ ہوگا تو رزلٹ ہمارے پاس 7 آئے گا۔ ایگزیکٹلی ہمارے پاس 7 ہی رزلٹ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم A کو ڈیوائڈ کریں گے B سے تو ہمارے پاس جو رزلٹ ہوگا، ڈویژن کا رزلٹ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 آئے گا، کیونکہ انٹیجر جو ہے وہ فریکشنل پارٹ کو اگنور کر دیتا ہے، اس لیے پوائنٹ کے بعد جو آنسر ہے وہ اس کو نہیں شو کرے گا۔ اب ایڈیشن، سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن تو ایز یوزول جیسے میتھ میں پرفارم کرتے ہیں ویسے ہو گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریمائنڈر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ ہمیں کیا رزلٹ جو ہے وہ ریٹرن کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے جو چینجز ریکوائرڈ تھیں وہ کی اور ڈویژن کی جگہ پہ ہم نے ریمائنڈر یا ماڈولس آپریٹر جو ہے اس کو لکھا۔ اب جب ہم پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو رزلٹ آتا ہے وہ بیسیکلی 1 ہے۔ اب یہ 1 ہمیں کیوں شو ہوا؟ کیونکہ جب ہم یہ ڈویژن پرفارم کرتے ہیں، 10 کو 3 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو باقی بچ جاتا ہے جو ڈیوائڈ نہیں ہوتا وہ 1 ہے۔ اس کے بعد ہم فریکشنل ویلیو کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ یہ فلوٹ کے اوپر کام نہیں کرتا، پھر بھی ہم ایک بار کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فلوٹ ویلیوز لیتے ہیں تو ہمارے پاس ریمائنڈر آپریٹر جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایڈیشن اگر کرتے ہیں تو ایڈیشن جو ہے وہ فلوٹ ویلیوز کے اوپر ہوتی ہے، تو بالکل ایبسولوٹلی ایڈیشن جو ہے وہ فلوٹ ویلیوز کے اوپر پرفارم ہوتی ہے اور رزلٹ جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پہ ریٹرن ہوتا ہے۔ 10.5
प्लस 3.5 इज इक्वल टू 14, तो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि एडिशन जो है वो फ्लोट वैल्यूज़ पे काम कर रही है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर काम नहीं करता। इसीलिए हमारे पास अगर हम ये कोशिश करें भी तो कंपाइलर जो है वो हमें एक एरर मैसेज शो करता है कि जो ऑपरेटर आपने यूज़ किया है उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो ऑपरेंड्स हैं उनकी टाइप्स फ्लोट हैं और ये ऑपरेटर फ्लोट वैल्यूज़ के साथ काम नहीं करता। इसलिए हमें स्क्रीन पे एक एरर मैसेज शो हुआ है, लिहाजा हम रिमाइंडर ऑपरेटर को सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हैं हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं ये क्या हैं, ये भी थोड़े से यूनिक हैं। वो इस लिहाज से कि नॉर्मली जब हम किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर किसी न्यू वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो हम कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं कि एग्जिस्टिंग इज़ इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर कुछ न्यू और यूनिक मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम कोडिंग जो है उसको शॉर्ट कर सकते हैं और बजाय इसके कि हम एग्जिस्टिंग इज़ इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्लस न्यू लिखें, इसकी जगह पे हम सिंपली एग्जिस्टिंग प्लस इक्वल टू न्यू लिख सकते हैं। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एग्जिस्टिंग इज़ इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्लस न्यू काम करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो है उसको 2 बार नहीं लिखना पड़ता। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल एग्जिस्टिंग लिया, उसके अंदर वैल्यू 100 सेव की। इसी तरह से एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल न्यू वैल्यू के नाम से सेव किया और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो 50 सेव की। अब हम जो नॉर्मल मेथड है उससे देखते हैं कि अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करें तो हमने इसको क्या करना है कि हमने लिखना है एग्जिस्टिंग इज़ इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्लस न्यू वैल्यू। इससे हमारे पास क्या होगा कि एग्जिस्टिंग के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास उसमें न्यू वैल्यू ऐड होगी और न्यू वैल्यू ऐड होने के बाद दोबारा जो रिज़ल्ट आएगा वो एग्जिस्टिंग के अंदर ही जाके हमारे पास सेव हो जाएगा। अब हम अगर सी आउट स्टेटमेंट की मदद से एग्जिस्टिंग का रिज़ल्ट देखेंगे तो एग्जिस्टिंग के अंदर हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू 150 होनी चाहिए। 100 जो एग्जिस्टिंग में पहले से थी, 50 जो उसमें न्यू वैल्यू ऐड हुई। इसलिए वैल्यू जो है अपडेशन के बाद हमारे पास जो आई वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास वो इक्वल है हमारे पास एग्जिस्टिंग के, क्योंकि हमने न्यू वैल्यू ऐड करके दोबारा रिज़ल्ट जो है वो एग्जिस्टिंग के अंदर ही सेव किया है। अब ये नॉर्मल मेथड से जब हम करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो इक्वल टू 150 आता है। 100 एग्जिस्टिंग की और 50 न्यू वैल्यू। इस तरह से जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास टोटल 150 आया। इसी तरह से अब हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसको करके देखते हैं कि क्या उससे भी हमारे पास कुछ इस तरह का ही रिज़ल्ट आता है या उससे रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट आता है। इस बार हम क्या करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे एग्जिस्टिंग प्लस इक्वल टू न्यू वैल्यू। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमें एग्जिस्टिंग को 2 बार नहीं लिखना पड़ा। फंक्शन ये भी बिल्कुल वैसे ही करेगा कि एग्जिस्टिंग में न्यू वैल्यू को ऐड करेगा और फिर उसको दोबारा एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ही सेव कर देगा। अब हम यहाँ पे न्यू वैल्यू को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं दोनों डिफरेंट हों, ताकि हमें दोनों ऑपरेशंस का रिज़ल्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि कहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हुई हैं और उसका रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास। अब जब हम सी आउट स्टेटमेंट की मदद से दोबारा इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो अब भी हमारे पास रिज़ल्ट वैसा ही आएगा, या एडिशन जो परफॉर्म होगी वो वैसी ही होगी जिस तरह लाइन नंबर 7 के अंदर हुई थी। तो लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 7 सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो लाइन नंबर 10 है यहाँ पे हमारे पास कोडिंग जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है।
हमें एग्जिस्टिंग जो है वो 2 बार नहीं लिखना पड़ता, हम सिंपली सिंगल टाइम एग्जिस्टिंग लिख के ही टास्क जो है वो परफॉर्म करवा लेते हैं। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो पहली एडिशन थी उसका रिज़ल्ट 150 आया, 100 एग्जिस्टिंग का था, 50 न्यू का था, दोनों को ऐड किया तो 100 + 50 इज़ इक्वल टू 150। इसी तरह से जब हमारे पास एग्जिस्टिंग में 150 सेव हो गया तो उसके बाद हमने न्यू वैल्यू को चेंज किया 100। अब ये 100 जब हमने दोबारा एग्जिस्टिंग के अंदर सेव किया तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे 150 हो चुका था, प्लस किया उसमें न्यू वैल्यू को, न्यू वैल्यू जो 100 कर दी थी हमने, तो 150 + 100 इज़ इक्वल टू 250। यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही आया जिस तरह लाइन नंबर 7 के अंदर हमने एग्जिस्टिंग और न्यू वैल्यू को ऐड किया था। तो इट मीन्स कि हम इसको लाइन नंबर 10 की तरह लिखें, एग्जिस्टिंग प्लस इज़ इक्वल टू न्यू वैल्यू, या लाइन नंबर 7 की तरह लिखें, जो फंक्शन या ऑपरेशन है उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि हमें लिखने में थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से हम प्लस इक्वल टू की बजाय माइनस इक्वल टू जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर माइनस इक्वल टू करेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा कि 150 में से न्यू वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जो कि 100 है, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस बार सिर्फ 50 होगा, क्योंकि 150 - 100 इज़ इक्वल टू 50। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू रिज़ल्ट है वो 50 है। इट मीन्स के प्लस इक्वल टू लिखें, माइनस इक्वल टू लिखें, ये दोनों उसी तरह से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 × 100, तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 15,000 आएगा। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी काम करता है। इसी तरह से आप इसको डिवीज़न के साथ भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर हम डिवीज़न इक्वल टू लिखें और इसको एग्जीक्यूट करें तो इस बार भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 100% एक्यूरेट आता है। इसका मतलब कि हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, ये उनका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही आता है जिस तरह हम नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा और उसको पढ़ने में आसान हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। कोडिंग की जो लाइंस हैं वो कम हो जाएंगी। अगर हम इक्वल टू के बाद में लिखते हैं ये ऑपरेटर तो इस तरह से प्रोग्राम जो है वो कभी भी कंपाइल नहीं होगा, इसलिए हमने हमेशा इसको इक्वल टू से पहले ही लिखना है कि अगर पहले लिखेंगे तभी कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करेगा, अगर बाद में लिखेंगे तो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर एक ऑपरेटर का एक प्रीसीडेंस लेवल है कि किस ऑपरेटर ने पहले एग्जीक्यूट होना है और किस ऑपरेटर ने बाद में एग्जीक्यूट होना है। और हमारे पास जो असाइनमेंट या इक्वल टू का ऑपरेटर है इसका प्रेसिडेंस लेवल सबसे कम है, इसने सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होना होता है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।